We told you that there's a lot of controversy going on, a lot of media hype that is there regarding a statement that came out from Ramiz Raja, and that was an interview that was done by senior journalist Salim Khalik Saab, who took this interview. And it's really important to discuss this here, that the team of Sports Extra, especially the sports editor Salan Shirazi, made it sure that we were able to discuss this, and we wanted to give both perspective. So I think hats off to the team of Sports Extra and Salan Shirazi, the sports head, for trying to arrange all of this and trying to talk more on this so we can get a further analysis of this. We've been joined on Sports Extra by the very honorable, the senior journalist that he is, Mr. Salim Khalik. Salim bhai, Assalamu alaikum. Welcome to Sports Extra. Walaikum assalam. Thank you for having me. Right, Salim bhai, first of all, you're in the middle of all of this. You're the first person in charge as well. We're going to be coming to you. But before that, we're going to show our viewers, Mohammad Hafiz has also made a couple of comments. Let's just go and listen to that, and then we come back, and then we'll discuss it with Salim bhai. मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर शख्स को पाकिस्तान के अंदर या हर जगह के ऊपर अपनी राय का जो है इजहार करने की पूरी आज़ादी है, और मैं हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, जो कोई भी जिसकी भी राय है। लेकिन जैसे रमीज भाई क्या बात कर रहे हैं, तो उनके क्रिकेटिंग कैरियर के ऊपर तो मैं उनको एक्नॉलेज करता हूं, जो सर्विसेज उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिए एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर। लेकिन उनकी क्रिकेटिंग सेंस और गेम अवेयरनेस के ऊपर मुझे हमेशा से रिजर्वेशन रही है। मुझे लगता है कि मेरे 12 साल का बेटा है, और उसकी अगर मैं कभी आपसे भी बात करूंगा तो उसकी गेम अवेयरनेस और उसकी गेम सेंस रमीज भाई से बहुत बेहतर आप जो है उसको जज करेंगे। तो उनके मसाइल तो हैं, उनकी अपनी गेम अवेयरनेस और उनके जजमेंट को लेके वो, लेकिन फिर भी उनकी राय है, अगर वो समझते हैं अपनी राय का इजहार उन्होंने इसी तरह करना है और करते रहते हैं, और अपने सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब चैनल्स की कामयाबियों के लिए उनको मिर्च मसाले की जरूरत है और वो इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। Well, there you have it. Statements coming from both sides. Lucky enough, Salim bhai has been in both places, so he knows the real story now where this is going. Salim bhai, it looks like a battle of the 12-year-olds. What do you have to say? Yeah, it's not a battle between all. मलिक रमीज राजा पहले भी कई बार दोनों के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे। इस टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने हफीज ने आउट ऑफ द पार्क, बिग 6 आउट ऑफ द पार्क। तो हफीज ने जिस तरह से बात की, हम लोग का मुत्तफिक होना उससे जरूरी नहीं है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि इशू चल रहा था काफी, और अब मामला इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि हफीज को ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा। और ये एक वन लाइनर है उनका, और आपको पता है सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, तो बिग कंट्रोवर्सी बन गई है। Definitely. Salim bhai, if I ask you in particular that Ramiz bhai has always not been supportive of the fact of carrying senior campaigners again and again. Pakistan team right now is moving to a new youngster lot that we're seeing. Babar Azam, a very young captain. Guys like Haider Ali, Abdullah Shafiq, a lot of youngsters now making place. Zishan, Khushdil. Pakistan team doesn't want to look back towards people they've tried it again. Misbah's made it clear, Kamran and people like him, he won't try them again. How do you see this in this context, that Pakistan is trying now to experiment with younger lot and they don't want the senior campaigners? No, senior is must in the squad. जूनियर्स भी होना चाहिए, लेकिन सीनियर्स भी जरूरी हैं। आप रिसेंटली अगर जो मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ वो T20 में उन्होंने 50s बनाई। PSL के जो प्ले ऑफ था पेशावर, वो उन्होंने सिंगल हैंडेडली जितवाया उनको। उसके अलावा शोएब मलिक को भी जब मौका मिल रहा था वो भी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो सीनियर है या उसकी एज ज्यादा हो गई है बाहर कर देना, ये चीज ठीक नहीं है। क्योंकि दुनिया में सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, एक मिक्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सीनियर्स भी हो, जूनियर्स भी हो। रमीज राजा की शायद अपनी राय है, यही रमीज राजा अगर इन जूनियर्स के साथ टीम एक सीरीज हार जाएगी तो ये प्लेयर्स ले लिए, सीनियर टीम में है ही नहीं, इस वजह से हार गए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि सीनियर भी होना चाहिए, जूनियर भी होना चाहिए, टीम में मिक्स कॉम्बिनेशन होगा तो उसका फायदा है। एक्सपीरियंस जो है उसके बड़े जरूरी होता है स्क्वाड में। Salim bhai, did you feel from the comments Hafiz made that maybe he was also upset with not making the side, not making the tour to New Zealand probably? Because in the past we have seen Mohammad Hafiz has also been supportive of playing youngsters. मोहम्मद हफीज न्यूजीलैंड गए हैं टीम के साथ, और यंगस्टर्स को वो जाहिर है फेवर करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन
उनकी जो मेरी बात हुई, अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें, अभी लोग ज्यादातर लोगों ने वो एक क्लिप देखी है 1 मिनट की या 1.5 मिनट की, अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें, उन्होंने एक जगह ये भी बोला है कि अगर पाकिस्तान के पास मेरे से अच्छे यंग प्लेयर आ गए तो मैं खुद क्रिकेट को छोड़ दूंगा। शोएब मलिक भी इसी किस्म की बातें करते हैं, वो इस सीरीज में मुंतखब नहीं हुए हैं। तो जैसे कि आपने हफीज के बारे में नोट किया होगा एक बात, कि हफीज जो है अब बहुत ज्यादा खुल के बात करते हैं। अब 40 इयर्स के हो गए माशाल्लाह, पैसा उनके पास अब बहुत है, क्रिकेट भी उन्होंने काफी खेल ली, कोई जॉब की भी जरूरत नहीं है। तो वो हर इशू में, जैसे शर्जील खान के लिए भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं आना चाहिए उनको टीम में, आमिर के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का केस लेकर वो पीएम से मिलने भी गए, मिसबाह और अजहर अली के साथ। तो हर चीज में जो इस तरह की होती है आपको हफीज नजर आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो डोमेस्टिक था वो रिफ्यूज कर दिया था। तो यंगस्टर्स के बारे में जाहिर है वो कह रहे हैं, लेकिन अगर आप हकीकत का जायजा लें, मैं आपसे भी पूछूं कि जो अभी हमारे पास ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, हफीज गो के बॉलिंग अब कम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको ऑलराउंडर ही कंसीडर करते हैं तो उनमें से क्या कोई ऐसा है जो उनकी जगह ले सके? ऑलराउंडर तो हमारे पास है ही नहीं अब पाकिस्तान में। जो यंग लड़के आते हैं, एक आध मैच में परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर चल नहीं पाते। शादाब खान ने आहिस्ता आहिस्ता अब शुरू किया है और होपफुली वो और आगे जाएंगे। Salim bhai, we've always said it on this program. That's why we gave the title of Sir Iftikhar, not just Iftikhar, because we are now seeing that Misbah has a lot of personal liking for Iftikhar over Mohammad Hafiz. असल में ये सारे एक साथ खेले हुए हैं, कुछ प्लेयर्स ने अपनी एज सही लिखवा दी होगी, कुछ ने गलत लिखवा दी होगी, तो फिर और पाकिस्तान क्रिकेट में तो आपको पता है ऐसा बहुत होता है। तो अगर आपने सईद अजमल का एक इंटरव्यू देखा हो पिछले दिनों, तो उसमें सईद अजमल ने उनकी एज के बारे में कुछ कहा था और इफ्तिखार बुरा मान के। मैंने सईद अजमल का भी एक इंटरव्यू किया था जहां पर सईद अजमल ने बताया कि उन्होंने उनको टेक्स्ट करके बोला इफ्तिखार ने कि सईद भाई आपने मेरी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बात कोई राज नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मिसबा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और शायद उनको लगता है कि वो ब्रेड मैन छुपा हुआ है उनके अंदर। बदकिस्मती से अभी तक बाहर आया नहीं है कोई ऐसा प्लेयर ना। बॉलिंग में एक आध मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा टर्न हो रही थी गेंद या कुछ हो रहा था। वो ज्यादातर बैट्समैन ने कहा यार ये जैसे बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, एक बॉलर आता था, हमें लगता था बहुत सादा है, आसान है, हम मारते थे और उसी को विकेटें मिलती रहती थी। तो ऐसा ही था। तो अब तक तो इफ्तिखार की कोई ऐसी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई है। होपफुली अभी न्यूजीलैंड या आगे कभी भी उनको मौका मिले खेलने का तो वो अच्छा परफॉर्म करें, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ जाए, वरना मिसबा को अभी भी लोग कहने लगे, आगे और कहेंगे। Definitely. Salim bhai, thank you so much for joining us on Sports Extra. Lots of prayers for you. Keep bringing us these very, very important interviews and all the very best.